Hello friends, as you know, I am CA Sanjeev S. Thakur. I welcome you in this Power Pack GST MCQ series. This is fourth part and covers entire concept of value of supply through MCQs. If you have not watched earlier three parts, I advise you to watch them for better clarity. The link of these videos is given in the description box. So let's start. First of all, let me discuss the highlights of this MCQ series. This entire MCQ series covers MCQs from all important topics of GST. Every MCQ has been analyzed with the help of very colorful and vibrant charts. When you will see the video, you will come to know that yes, our team has done a very remarkable and tremendous work. And this series will cover full syllabus of GST with the help of MCQs. Every MCQ has been discussed with other related topics so that a viewer can get a bird eye view at one place. And all the solutions of MCQs are based on latest amendments. And these MCQs are important for all competitive examinations. So let's begin. This comes the first MCQ. Which section of CGST Act contains basic provisions to determine value of supply of goods and services? So let's check the options. 1 section 13, B section 14, C section 15. Yes, section 14 covers all the provisions related with the value of supply of goods and services. So hence C seems to be a correct answer. D section 16, no. So C seems to be the correct answer. Let's check. Yes. This is the entire plan of section 15. Section 15 is having 5 subsections. Section 15.1 covers the transaction value. We will discuss in detail all these subsections. Subsection 2 covers inclusion in transaction values. That means what items are included in the transaction value. 15.3 is related with deduction of discount. 15.4 is related with the provisions when transaction value is not applicable under section 15.1, and rules 27 to 31 will prevail. Section 15.5 covers some special cases where the specific valuation rules will apply. MCQ 2. What does value of supply refers to in the context of GST? So what is the meaning of value of supply? Let's check the options. A, the price at which goods or services are supplied. Yes. It is the price at which GST is charged. So value of supply is very important to determine because GST will be levied on this value. Option B, the cost of production of goods and services. No. C, the total revenue generated by a business. No. D, the value of goods and services after tax. No. So A is the correct answer. MCQ 3. When is the value of supply for GST is determined? So when it is determined at the time of supply. A option, at the time of production, no. B, at the time of supply, yes. C, at the time of filing GST returns, no. D, at the time of import, no. So B seems to be the correct answer. Let's check the answer. Yes, B is the correct answer. Moving forward. 4. As per section 15.1, value of supply is the transaction value if following conditions are satisfied. We'll discuss with the help of chart, but let me tell you, ये जो सेक्शन 15.1 है वो अप्लाई होता है और ट्रांजैक्शन वैल्यू चार्जेबल होती है. ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है? ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब जिस वैल्यू पे ट्रांजैक्शन हुआ. जैसे एक सप्लायर ने मोबाइल फोन सेल किया 50,000 रुपीज का, तो वही क्या है? ट्रांजैक्शन वैल्यू. दूसरे सप्लायर ने सेल किया वही मोबाइल सपोज 48,000 का, तो वही क्या है? ट्रांजैक्शन वैल्यू. ट्रांजैक्शन वैल्यू मीन्स जिस वैल्यू पे ट्रांजैक्शन हुआ. ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या कंडीशंस हैं. ए, पार्टीज आर नॉट रिलेटेड, यानी ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्टेड होगी. जिस भी वैल्यू पे आपने गुड्स और सर्विसेज सप्लाई की वही एक्सेप्टेबल होगी
लेकिन उसमें कंडीशंस हैं, 2 कंडीशंस हैं। पहली, पार्टीज आर नॉट रिलेटेड, यस ये कंडीशन है, रिलेटेड नहीं होने चाहिए। बी, प्राइस इज सोल कंसिडरेशन, प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, कोई और हिडन कंसिडरेशन या कंसिडरेशन इन काइंड नहीं होना चाहिए। See both A and B, yes, this is the correct answer. D, none of the above, no. So let's check the answer. Yes, C is the correct answer. Moving forward, yes, this is the chart of value of supply. There are basically 1 to 15.5 sections which I've already discussed. Section 15.1, 15.2 and 15.3, they are related with the general provisions. Whereas section 15.4 is related with the specific cases from rule 27 to 31. And section 15.5 is related with the certain specific cases where valuation rules will prevail. And these rules have been notified as Valuation Rules 2017 of CGST Act by the GST Council. MCQ 5, as per section 15.2 transaction value includes. तो section 15.2 में हमने बताया ना कि कुछ inclusions होते हैं ट्रांजेक्शन वैल्यू में, जो वैल्यूज इंक्लूड होती हैं। तो एक बार देखते हैं क्या क्या वैल्यूज इंक्लूड होती हैं। पहला, ऑल टैक्सेस अदर देन जीएसटी, यस कोई भी टैक्सेस। आप कहेंगे जीएसटी के अलावा कौन से टैक्स, जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स हैं तो टोबैको प्रोडक्ट्स पे अभी भी वही पुराना वाला एक्साइज ड्यूटी लगता है, तो वो एक्साइज ड्यूटी है तो वो भी ऐड होगा। जैसे म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं, अगर कोई म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं तो वो भी ऐड होंगे। और देखते हैं जीएसटी ऐड नहीं होगा, लेकिन थर्ड पार्टी पेमेंट, अगर थर्ड पार्टी पेमेंट हुआ तो वो भी ऐड होगा। हम चार्ट के थ्रू देखेंगे इसे डिटेल में। एंड सी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, यस कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होंगे तो वो भी ऐड होंगे। तो देखते हैं ऑल ऑफ द अबव, यस दिस सीम्स टू बी द करेक्ट आंसर, यस। ये सेक्शन 15.1 की कंडीशंस हैं दो। अभी हमने देखा ना सेक्शन 15.1 में दो कंडीशन होनी चाहिए। द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। पेड का मतलब अगर कैश सेल है, कैश सप्लाई है तो पेड, और अगर क्रेडिट है तो पेबल। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू कब अप्लाई होगा, वेयर द सप्लायर एंड रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई आर नॉट रिलेटेड, रिलेटेड नहीं होने चाहिए। रिलेटेड जैसे कंपनी में डायरेक्टर्स रिलेटेड होते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स रिलेटेड होते हैं, इंडिविजुअल के केस में ब्लड रिलेटिव्स रिलेटेड होते हैं। रिलेटिव की भी डेफिनेशन है जीएसटी में। और द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई, यानी प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। 6, एज पर सेक्शन 15.2 ट्रांजैक्शन वैल्यू इंक्लूड्स। तो सेक्शन 15.2 के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है, क्या क्या इंक्लूड होते हैं, पहले हमने देखे ना, एक बार देखते हैं। इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टीज फॉर डिलेड पेमेंट, यस इंटरेस्ट जनरली सप्लाई का पार्ट होती है, लेकिन इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होती। जनरल केसेस में इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होती, जीएसटी नहीं लगता इंटरेस्ट पे। जैसे बैंक इंटरेस्ट लगाते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगता, कोई फाइनेंस कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करती है उस पर जीएसटी नहीं लगता। लेकिन ये जो इंटरेस्ट है जो डिलेड पेमेंट पे लगती है, लेट फीस या पेनल्टी, वो इंक्लूड होती है। सब्सिडीज अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडीज, तो गवर्नमेंट सब्सिडीज के अलावा अगर कोई सब्सिडी है तो वो इंक्लूड होती है। जैसे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी है वो इंक्लूड नहीं होती। तो सी बोथ ए एंड बी, यस करेक्ट आंसर लगता है। देखते हैं एक बार आंसर, यस। तो सेक्शन 15.2 के जो इंक्लूजन अभी हमने दो एमसीक्यूज के थ्रू देखे, एक बार हमने चेक कर लेते हैं। इंक्लूजन इन ट्रांजैक्शन वैल्यूज, तो ट्रांजैक्शन वैल्यूज में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो सेक्शन 15.2 के 5 क्लॉजेस हैं, ए बी सी डी ई। तो ए में क्या है, ऑल टैक्सेस अदर देन जीएसटी, जीएसटी के अलावा सारे टैक्सेस ऐड होंगे। थर्ड पार्टी पेमेंट फॉर विच सप्लायर इज लायबल, ये भी ऐड होगा। ये क्या केस होता है, जैसे आप सप्लायर हैं, मान लीजिए मैं सप्लायर हूं और आप रिसिपिएंट हैं, और गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी थी, यानी सप्लायर की थी। लेकिन हमने कहा कि देखो सप्लायर हमें वो नहीं मिल पा रहा है ट्रांसपोर्ट, अच्छा तो आप अरेंज कर दो। तो आपने कहा ठीक है, 1 लाख रुपए सप्लाई की वैल्यू थी, आपने कहा 10,000 रुपीज जो ट्रांसपोर्टेशन हम अरेंज कर देंगे। तो क्योंकि आपने ट्रांसपोर्ट अरेंज किया तो हमने 10,000 रुपीज माइनस कर दिए, यानी 90,000 रुपीज का इनवॉइस दिया। आपने 10,000 ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर दिया, तो जो जीएसटी लगेगा वो कितने पे लगेगा, पूरे 1 लाख पे लगेगा। देखते हैं सी, एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस पैकिंग है, इंश्योरेंस है, फ्रेट है, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन है, वेटमेंट चार्जेस है, इस तरह का कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस अगर है, हमारे वो काम नहीं है तो भी,
जैसे पैकिंग हमारा काम नहीं है, लेकिन आपने कहा कि दिवाली है, हमें गिफ्ट देना है तो आप पैक करके दे दीजिए, तो हमने सप्लाई को पैक करके दिया और कुछ चार्जेस लिए, तो वो भी इंक्लूड होंगे। फिर इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट, ये हमने पहले डिस्कस किया, ये भी इंक्लूड होगा। और सब्सिडी अगर इनवॉइस से रिलेटेड है, लिंक्ड है और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा है। ये क्या केस होता है? जैसे आप स्टूडेंट हैं, हमने सप्लाई किया आपको बुक्स और 10,000 रुपीज की बुक्स थी, हमें किसी एजेंसी ने उस बुक्स पे सब्सिडी दे दी 100 रुपीज की, हमने आपसे 900 चार्ज किए। हमारे पास आए कितने? सप्लायर के पास आए 900 रुपीज स्टूडेंट से और 100 रुपीज सब्सिडी किसी पर्सन से। तो भी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो वैल्यू 1000 ही होगी। हालांकि बुक्स पे जीएसटी नहीं लगता, लेकिन ये एग्जाम्पल समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं। MCQ 7 अंडर सेक्शन 15(3) विच टाइप ऑफ डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो डिस्काउंट कौन सा डिडक्ट होता है? अगर पहले से अग्रीड हो डिस्काउंट तो फिर वो डिडक्ट होता है, और अगर बाद में एग्री हो तो फिर वो प्रोविजन में होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ऑन और बिफोर उसका डिस्कशन होना चाहिए। तो देखते हैं। ए, एनी डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, यस, डिडक्शन मिलती है। बी, एनी डिस्काउंट गिवन आफ्टर द सप्लाई विच वॉज एग्रीड बिफोर और एट द टाइम ऑफ, या एग्रीड था डिस्काउंट, उसकी भी डिडक्शन मिलती है। फिर देखते हैं एनी डिस्काउंट गिवन आफ्टर द सप्लाई विच वॉज नॉट एग्रीड और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, यानी एग्रीड नहीं था, तो क्या होगा देखते हैं। और डी, बोथ ए एंड डी, यस। एग्रीड नहीं था तो सी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि एग्रीड नहीं था एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बाद में डिस्काउंट दिया, यानी रैंडम डिस्काउंट दे दिया आपने, वो डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो डी करेक्ट आंसर लग रहा है, एक बार देख लेते हैं। यस, डी इज करेक्ट आंसर। 8th MCQ, year end discount under section 53B is deducted from the value of supply if year end discount का भी डिडक्शन मिलता है। तो देखते हैं कैसे मिलता है। such discount is linked to the invoice, yes, proportionate ITC is reversed by the, यानी recipient ने रिवर्स किया हो ITC। ये क्या मतलब है? जैसे हमने 1 लाख रुपए का गुड्स आपको दिया, आप रिसिपिएंट है, हम सप्लायर हैं, और उस 1 लाख रुपए के बाद में हमने 10,000 रुपीज 10% डिस्काउंट दे दिया, यानी क्रेडिट नोट इशू कर दिया, जीएसटी वाला क्रेडिट नोट। अब क्रेडिट नोट इशू कर दिया 10,000 का, तो आपके लिए 90,000 रुपीज ही आप पेमेंट करेंगे। लेकिन आपने आईटीसी तो 1 लाख रुपए पे ले लिया होगा ना। अगर 1 लाख पे आईटीसी लिया है तो आप 10,000 रुपीज पे आईटीसी रिसिपिएंट को रिवर्स करना होगा। और सी एस, सच डिस्काउंट वॉज एग्रीड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, यानी एग्री होना चाहिए। तो फिर देखते हैं ऑल ऑफ द अबव, यस, ये सारी कंडीशन है, तो फिर ईयर एंड डिस्काउंट भी एलिजिबल है। देखते हैं एक बार आंसर। यस, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। ये डिस्काउंट का चार्ट आ गया, देखो अभी हमने डिस्कस किया ना, और ये चार्ट से एकदम क्लैरिटी आ जाती है और लर्न भी हो जाता है। देखते हैं सेक्शन 15(3) डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट। तो एनी डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, यस, डिडक्शन अलाउ होगी। आफ्टर द सप्लाई, सप्लाई के बाद डिस्काउंट दिया, लेकिन वो एग्रीड था बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, पहले से एग्रीड था, टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड थी, इन टर्म्स एंड कंडीशन पे, इन सिचुएशन पे डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन डिसाइड बाद में हुआ, उसके भी डिडक्शन मिलेगी। इफ क्या कंडीशन है? लिंक टू द इनवॉइस, इनवॉइस से रिलेटेड था वो डिस्काउंट, और आईटीसी रिसिपिएंट ने रिवर्स कर दिया। इसके अलावा अगर कोई रैंडम डिस्काउंट आपने दे दिया तो वो नहीं, उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, यानी जीएसटी उस पर चार्ज होगा। आगे बढ़ते हैं। 9th MCQ, which GST valuation rule is applicable when consideration is not wholly in money। अब हम क्या कर रहे हैं? अगर 15(1) से वैल्यूएशन नहीं होता तो फिर हम रूल्स में जाते हैं, और जो रूल्स में जाते हैं तो हमारे पास फर्स्ट रूल आ रहा है, यानी रूल 27। तो वो रूल 27 क्या कहता है कि अगर कंसिडरेशन ना हो, तो अभी हम रूल्स को बहुत अच्छे से चार्ट से देखेंगे। एक बार ये MCQ देखते हैं पहले। ऑप्शंस क्या है? रूल 27, तो यस 27 ही सही आंसर आ रहा है। फिर 27 इज करेक्ट आंसर। तो चेक करते हैं। यस, ये आ गया चार्ट, इतना कलरफुल वाइब्रेंट चार्ट है, और इससे सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। यानी 3 रूल्स कौन कौन से होंगे? 27, 28, 29, और उसका उससे पहले एक पूरा ओवरऑल व्यू। तो जनरल वैल्यूएशन मैकेनिज्म क्या है? बेसिक जो वैल्यूएशन है वो सेक्शन 15 से 15(1) से 15(3) तक होता है, और कंडीशन क्या है? पार्टीज रिलेटेड नहीं होनी चाहिए और प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। बहुत अच्छा। और अगर सप्लायर नॉट सेटिस्फाइड बेसिक कंडीशन, ये कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो, तो फिर वैल्यूएशन रूल अप्लाई होंगे। 27 से 31 तक रूल्स अप्लाई होंगे। ये प्रोविजन कहाँ है? सेक्शन 15(4) में। और
कुछ सप्लाईज ऐसी हैं जो नोटिफाइड हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है, तो उनके लिए रूल 32 के बहुत सारे रूल्स हैं, वो रूल्स अप्लाई होंगे। और ये प्रोविजन कहाँ है? सेक्शन 15(5) में। 10th MCQ, which GST valuation rule is applicable when supply is between deemed distinct person or related person? Related person तो हमने बताया कि deemed distinct person क्या होता है? ये होता है जब एक ही पेन पे पेन बेस्ड दो या दो से ज्यादा रजिस्ट्रेशन होते हैं सेम पर्सन के, पेन नंबर सेम है, सेम पेन से रजिस्ट्रेशन है। जैसे एक पर्सन का दो स्टेट में रजिस्ट्रेशन है, या एक पर्सन के ही बिजनेस के डिफरेंट लेग्स हैं और दोनों लेग्स का उसने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। जैसे एक रेस्टोरेंट बिजनेस है और एक हो सकता है फर्नीचर शोरूम है, तो दोनों का ही रजिस्ट्रेशन है, तो इन्हें बोलते हैं डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। तो इनके लिए रूल कौन सा अप्लाई होता है? 28 रूल अप्लाई होता है। एक बार देख लेते हैं। ए 27, 28, 29, रूल 30। तो देखते हैं आंसर। यस, रूल 28। ये आंसर में गलत हो गया है, बी होना चाहिए यहाँ, ये बी होना चाहिए, बी रूल 28। आगे बढ़ते हैं। MCQ 11, which GST valuation rule is applicable when supply is between principal and agent? तो ये सीक्वेंस में रूल है 27, 28, 29। तो ये प्रिंसिपल और एजेंट का रूल कौन सा है? 29। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। यस, 29 करेक्ट आंसर लग रहा है। एक बार आंसर देख लेते हैं। यस, 29। ये आ गए रूल्स। तो देखते हैं 27, 28, 29 कब अप्लाई होते हैं। हमने देखा 27 अप्लाई होता है अगर कंसिडरेशन होली मनी में नहीं है। ये क्या बात हुई? ये बात हुई जैसे आपने क्या किया, हम जैसे सप्लायर हैं और आप कस्टमर हैं और आप मोबाइल परचेज करने आए, और तो मोबाइल 50,000 रुपीज का था। आपने क्या किया, एक एक्सचेंज में पुराना मोबाइल दिया, उसका हमने वैल्यूएशन किया 10,000 और 40,000 आपसे ले लिए। तो पूरा जो कंसिडरेशन है वो मनी में नहीं है। आपने 50,000 दिए, कैसे दिए? 10,000 का पुराना मोबाइल और 40,000 कैश। ऐसे केस में कैसे अप्लाई होगा रूल? तो पहला रूल 27 अप्लाई होगा, यानी 15(1) से वैल्यूएशन नहीं हो पा रहा क्योंकि प्राइस सोल्ड कंसिडरेशन नहीं है। तो फिर कैसे होगा? ओपन मार्केट वैल्यू, सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू ले लो। जैसे वो मोबाइल है 50,000 का, उसका एमआरपी 50,000 है, ओपन मार्केट है, सभी जगह 50,000 का मिलता है, तो 50,000 ही वैल्यूएशन हो जाएगा। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो फिर कंसिडरेशन इन मनी, तो मनी में आपने कितना दिया? 40,000 तो कैश दिया, बिल्कुल ठीक। और 10,000 रुपए का पुराना मोबाइल उसका वैल्यूएशन था, तो 10,000 वो तो ऐसे 50,000 हो जाएगा। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है और वो मोबाइल को ऐसा प्रोडक्ट बेचा जो मार्केट में है ही नहीं, एग्जैक्ट वैसा प्रोडक्ट नहीं है, तो उस जैसा मिलता-जुलता प्रोडक्ट कितने का है? तो उससे मिलता-जुलता प्रोडक्ट यानी लाइक काइंड वैसे ही प्रकार का और वैसी ही क्वालिटी दोनों, तो वो 50,000 का मिलता है मार्केट में, तो वो वैल्यूएशन हो जाएगा। और अगर तीनों फेल हो जाएँ, कोई ऐसा ट्रांज़ैक्शन किया आपने गुड्स या सर्विसेज़ का, जो इन तीनों ही अवेलेबल नहीं है, तो फिर रूल 30 और 31 अभी देखेंगे हम। फिर आता है रूल 28। 28 कब अप्लाई होता है? जब पार्टीज रिलेटेड होती हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं। तो अगर रिलेटेड हैं तो वहाँ मैनिपुलेशन हो सकता है ना, इसलिए रूल अप्लाई होता है। यानी 15(1) अप्लाई नहीं होता है। तो सिंपल, ओपन मार्केट वैल्यू पहले वो ले लो। ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी ले लो। वो भी नहीं है तो फिर रूल 30 एंड 31। फिर आता है रूल 29। 29 क्या कहता है? सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो प्रिंसिपल और एजेंट में भी मैनिपुलेशन हो सकता है क्योंकि प्रिंसिपल का एजेंट पे कंट्रोल होता है। तो क्या कहता है रूल? ओपन मार्केट वैल्यू ले लो अगर अवेलेबल है तो, अगर वो नहीं है, या फिर 90% ऑफ प्राइस ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, उसी जैसा जो गुड्स है उसका 90% प्राइस ले लो। और अगर ये दोनों ही नहीं है तो फिर रूल 30 या 31 में डिसीजन होगा। Which rule is are applicable when valuation of supply of goods is not possible under rule 27, 28, 23? तो हमने देखा ये भी, अगर तीनों रूल्स में पॉसिबल नहीं है तो 30, 31 अप्लाई होते हैं। तो एक बार देखते हैं ऑप्शन। रूल 30 यस होता है, रूल 31 होता है, तो सी रूल 30 एंड 31 इन ऑर्डर। यस, इन ऑर्डर में होते हैं, पहले 30 फिर 31। सप्लायर ऑफ सर्विस के लिए कोई भी रूल कर सकते हैं, गुड्स के लिए कंडीशन है पहले 30 फिर 31। तो देखते हैं आंसर, हमें सी आंसर ठीक लग रहा है और आंसर चेक करते हैं। यस, सी इज करेक्ट आंसर। ये अगर रूल 30 और 31, तो ये क्या है? सिंपल रूल है। कब अप्लाई होते हैं? जब जो सिचुएशन है वो 27, 28, 29 रूल में कवर है लेकिन वैल्यूएशन नहीं हो पा रहा, या फिर वो सिचुएशन कवर्ड ही नहीं है इन रूल्स में। रूल 30 क्या कहता है? सिंपल है, वैल्यू ऑफ सप्लाई बेस्ड ऑन कॉस्ट। जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट ये 110% है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
वो प्रोडक्शन ले लो, 110% ले लो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले लो, या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लो, या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज ले लो। तो यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 अप्लाई होता है, उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट करना होता है। रूल 31 क्या है? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है, यानी फिर ऑफिसर करेगा। अगर सारे रूल फेल हो गए तो फिर ऑफिसर करेगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। रीजनेबल मीन से करेगा, या 15 के जो प्रोविजन है उन प्रोविजन को कंसीडर करके वैल्यूएशन ऑफिसर करेगा। गुड्स के केस में पहले 30 अप्लाई होगा, फिर 31 होगा। सर्विसेज के केस में दोनों में से कोई भी रूल हो सकता है। MCQ 13, which rule or rules is or are applicable when valuation of supply of services is not possible under rule 27, 28, 29? 27, 28, 29 में जब नहीं होता तो ये तो हमने देख ही लिया। तो रूल 30 और 31 होते हैं। इस केस में कह रही है सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में। तो सर्विसेज के केस में ऑप्शन होता है सप्लायर का, यानी 30 और 31 कोई भी हो सकता है। पहला वाला MCQ था वो जनरल था, गुड्स के लिए था वो। आगे देखते हैं। विच रूल इज एप्लीकेबल फॉर वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई ऑफ लॉटरी? यस, अगर आपने लॉटरी खेली, या बैटिंग की, शर्तबाजी, या गैम्बलिंग, जुआ खेला, या फिर हॉर्स रेसिंग की, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? अब यहाँ पे से जो रूल्स अप्लाई होते हैं हमारे, वो रूल्स अप्लाई होते हैं स्पेसिफिक रूल्स, है ना? तो देखते हैं एक बार, ऑप्शंस देखते हैं। रूल 31 है, यस 31A रूल अप्लाई होता है हॉर्स रेसिंग और बैटिंग गैम्बलिंग के केस में। तो आंसर देख लेते हैं एक बार। यस 31A इज करेक्ट आंसर। अब देख लेते हैं एक बार, हम MCQ देखेंगे फिर चार्ट देखेंगे। आपको सीक्वेंस समझ में आ रहा होगा ना? पहले MCQ देखते हैं फिर उसका चार्ट देखते हैं। तो ये चार्ट किससे रिलेटेड है? लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग के केस में। तो लॉटरी के केस में रूल 31A है, लॉटरी के केस में ये प्रोविजन अप्लाई होगा, और बैटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग के केस में ये। तो लॉटरी के केस में क्या होता है? फेस वैल्यू ऑफ टिकट, जो भी टिकट पे फेस वैल्यू है, और प्राइस नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट। और ये जो फेस वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो वैल्यू है उस पे 100 डिवाइडेड बाय 128। पहले ये जो नोटिफिकेशन है ना, एक नोटिफिकेशन आया 1/3/2020 को, जिसमें दोनों केसेस में 28% रेट अप्लाई कर दिया। इससे पहले रेट डिफरेंट होता था, यहाँ 12 होता था और यहाँ पे 28 होता था। तो लॉटरी रन बाय स्टेट गवर्नमेंट में 12 था, और लॉटरी ऑथराइज बाय स्टेट गवर्नमेंट में 28% था। अब तो 1 मार्च 2020 के बाद से सेम रेट कर दिया, तो सेम प्रोविजन अप्लाई होगा। ये जो 100/128 करते हैं ना, ये यहाँ पे नहीं करते। बैटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस के केस में सिंपल जो फेस वैल्यू होगी बैट अमाउंट की, या जो टोटलाइजर को पे करते हैं, वही अमाउंट पे टैक्स लगेगा। आगे बढ़ते हैं। MCQ 15, which rule is applicable for valuation of supply of service in relation to the purchase of or sale of foreign currency? तो फॉरेन करेंसी से रिलेटेड रूल्स आ रहे हैं, मतलब वन बाय वन हम MCQ देखेंगे, फिर रूल को चार्ट के थ्रू देखेंगे। तो 32(1), 32(2), 32(2) रूल है। अब ये सीक्वेंस में चलेंगे, 32(2) के बाद से सीक्वेंस में चलेंगे रूल्स। तो ये जो फॉरेन करेंसी से रिलेटेड है वो 32(2) है रूल। एक बार देखते हैं 32(2). नेक्स्ट, ये चार्ट है। ये चार्ट किससे रिलेटेड है? वैल्यूएशन ऑफ परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी का परचेज सेल हो रहा है तो कैसे होगा? ऑप्शन है, जो भी डीलर है उसके पास ऑप्शन है, या तो वो ऑप्शन 1 ऑप्ट कर ले या 2 ऑप्ट कर ले, दोनों में से कोई भी कर सकता है। ये देखते हैं ऑप्शन 1। अगर फॉरेन करेंसी और रुपीस के बीच में ट्रांजैक्शन है और आरबीआई की रेफरेंस रेट अवेलेबल है, तो सिंपल है। वैल्यूएशन कैसे करो? डीलर का रेट, जैसे डीलर ने डॉलर पे रेट लगाया 84, और आरबीआई का जो बेस रेट है वो था 83, तो 1 रुपी डिफरेंस आया। 1 रुपी और $1 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ, तो 1 इंटू 1 लाख, 1 लाख रुपए हो गया वैल्यूएशन। आरबीआई रेफरेंस रेट अगर अवेलेबल नहीं है, तो जो भी वैल्यू था, अमाउंट था, जो ग्रॉस अमाउंट फॉरेन करेंसी का रुपीस में एक्सचेंज किया, जैसे 10 लाख रुपए का रुपीस में पेमेंट किया या मिला, तो उसका 1% वैल्यूएशन हो गया, सिंपल। और अगर दो फॉरेन करेंसी है, जैसे एक डॉलर है दूसरा यूरो है, या एक डॉलर है दूसरा पौंड है, तो फिर दोनों करेंसी को रुपीस में कन्वर्ट कर लो, और दोनों में से जो भी अमाउंट आए, आरबीआई का जो रेट है उस रेट से कन्वर्ट कर लो, और जो भी लीस्ट अमाउंट आए उस लीस्ट अमाउंट का 1% कर दो वैल्यूएशन, सिंपल। अब इस वैल्यूएशन में प्रॉब्लम होती है कि ये जो जब बताते हैं कस्टमर को वैल्यू, तो उसे पता चल जाता है कि कमीशन कितना है डीलर का, तो कमीशन डिस्क्लोज हो जाता है। तो ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 2 क्या है? अगर जो एक्सचेंज वैल्यू थी वो 1 लाख रुपए तक थी, तो क्या करो, वैल्यू का 1% कर दो, लेकिन 250 मिनिमम रहेगा ही वैल्यूएशन। दूसरा, अगर 1 लाख से 10 लाख रुपए तक वैल्यू थी, तो 1 लाख का तो यहाँ हो गया ना 1%, यानी 1000, प्लस जो बाकी बचा 1 लाख से ऊपर जितना भी है, उस पे 0.5% कर दो। फिर है
10 लाख से ज़्यादा का है अगर ट्रांज़ैक्शन, एक्सचेंज वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा है, तो यहाँ तक 5,500 तो आ ही जाता है। यहाँ तक देखो 1 लाख का 1% 1,000 आ गया, यहाँ लिख दिया 1,000। फिर यहाँ पे मान लो 9 लाख रुपए बचे, 1 लाख यहाँ हो गया, तो 9 लाख रुपए पे 0.5% 4,500, तो 1,000 और 4,500 कितना हो गया 5,500, 10 लाख तक ये तो हो ही गया। प्लस 10 लाख से जितना भी ज़्यादा अमाउंट है, वो अमाउंट पे 0.1%, लेकिन मैक्सिमम 60,000 हो। तो ये ऑप्शन 2 है, कोई भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं, चॉइस है। MCQ 16, which rule is applicable for valuation of supply of services in relation to booking of tickets for travel by air? तो travel by air के केस में कौन सा हमने बताया था सीक्वेंस पर रूल अप्लाई होंगे, तो 32 हो चुका था, अब है 32 यस, तो सी इज द करेक्ट आंसर, 32 तो ये देख लेते हैं रूल, बड़ा सिंपल सा है। एयर ट्रैवल एजेंट्स होते हैं ना, उन्हें जो एयरलाइन कंपनीज से कमीशन मिलता है, तो उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, जो भी बेस फेयर होगा, डोमेस्टिक बुकिंग है तो बेस फेयर का 5% वैल्यूएशन हो जाएगा, और इंटरनेशनल बुकिंग है तो फिर बेसिक फेयर का 10%। और ये जो बेसिक फेयर है उसका मतलब क्या है, वो बेसिक फेयर एयर फेयर ऑन विच कमीशन इज पेबल टू एयर ट्रैवल एजेंट, जिस अमाउंट पे एयर ट्रैवल एजेंट को कमीशन मिलता है, जनरली उन्हें बेस फेयर पे मिलता है। बहुत सारे और भी चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस इंक्लूड नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। MCQ 70, which rule is applicable for valuation of supply of services in relation to life insurance business? तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जितने भी होते हैं, उनके लिए वैल्यूएशन कैसे होता है, तो देखते हैं कौन सा रूल अप्लाई होता है, ये पूछ रहे हैं। तो देखते हैं, उन्होंने बताया ना सीक्वेंस में होते हैं, 13 2 हो गया, 13 3 हो गया, तो 13 4 बचा, तो क्या होगा 13 4 करेक्ट आंसर। अब देख लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो 3 तरह की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है। एक सेविंग पॉलिसी होती है, एंडोनमेंट पॉलिसी, जिसमें आपको बाद में रिटर्न मिलता है। सेकंड सिंगल एनुअल प्रीमियम पॉलिसी, यानी एक बार में आप पूरा प्रीमियम दे देते हैं। और तीसरा रिस्क कवर, केवल रिस्क कवर होता है, कुछ भी रिफंड नहीं मिलता, रिटर्न नहीं मिलता। तो देखते हैं, अगर सेविंग पॉलिसी में 2 कंडीशन हो सकती है। जो इन्वेस्टमेंट का एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट है, वो पॉलिसी होल्डर को बताया जाता है, या इन्वेस्टमेंट नहीं बताया जाता। तो अगर बताया जाता है, तो जितना ग्रॉस प्रीमियम आपने दिया, जैसे आपने 1 लाख रुपए प्रीमियम दिया और 90,000 उसमें से इन्वेस्टमेंट हो जाता है, और इंश्योरेंस कंपनी आपको बताती है इन्वेस्टमेंट, तो फिर 1 लाख में से 90,000 गए, तो कितना बचा 1 लाख माइनस 90,000 10,000, तो 10,000 ही वैल्यूएशन होगा। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं बताते तो फर्स्ट ईयर में आपने जितना प्रीमियम दिया उसका 25% वैल्यूएशन होगा, और सेकंड ईयर ऑनवर्ड जितना भी प्रीमियम दिया उसका 12.5% वैल्यूएशन होगा। अब देखते हैं सिंगल एन्युइटी, जैसे आपने 5 लाख रुपए दे दिया प्रीमियम और 20 साल की पॉलिसी है, सिंगल प्रीमियम 5 लाख, तो क्या होगा, वो पूरे 5 लाख का 10% यानी 50,000 वो वैल्यूएशन होगा। और अगर रिस्क पॉलिसी है, केवल रिस्क कवर है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई रिफंड नहीं, तो फिर क्या होगा, जितना आपने प्रीमियम पे किया वही वैल्यूएशन होगा। जैसे 1 लाख रुपए पे करके आपने इंश्योरेंस लिया, तो वो पूरा 1 लाख रुपए वैल्यूएशन होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हिच रूल इज एप्लीकेबल फॉर वैल्यूएशन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड गुड्स? तो सेकंड हैंड गुड्स के बाइंग एंड सेलिंग पे कौन सा रूल अप्लाई होता है? उन्हें होता है ना, ये रूल सीक्वेंस में है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो कौन सा होगा, 5 होगा। तो 5 सीम्स टू बी द करेक्ट आंसर। यस, ये आ गया चार्ट 32 5 रूल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। तो सेकंड हैंड गुड्स में क्या होता है, 2 कंडीशन हो सकती है। जनरली सेकंड हैंड गुड्स का परचेज अनरजिस्टर्ड से होता है, यानी जो परचेज करते हैं जिससे, वो अनरजिस्टर्ड होता है। तो अगर जो सप्लायर है, यानी जो आगे सेल कर रहा है, यानी एजेंट है, जो बाइंग सेलिंग एजेंट, वो अगर आईटीसी लेता है और नहीं लेता, तो आईटीसी इज नॉट टेकन, वो आईटीसी नहीं लेता, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेता, या फिर वो लेता है। अगर वो इनपुट आईटीसी क्लेम नहीं करता, तो सिंपल सी बात है, सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। जैसे इस डीलर ने एक कार परचेज की, कितने की 4 लाख रुपए की कार परचेज की, सेल कितने की 5 लाख रुपए में, तो 5 लाख रुपए में से 4 लाख माइनस कर दो, तो उसका मार्जिन कितना आया, 1 लाख रुपीस, वही 1 लाख क्या होगा, वैल्यूएशन। क्या उसने अगर लॉस में सेल की, तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आईटीसी लेता है, तो सिंपल ट्रांजैक्शन रूल अप्लाई, ट्रांजैक्शन वैल्यू अप्लाई होगी सेक्शन 15(1) वाली, बहुत ईजी। अब 32(5) एक रूल है, इसी में रीपर्चेस्ड गुड्स फ्रॉम डिफॉल्टिंग बोरोवर्स। तो क्या होता है, कई बार जो फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, जो बैंक्स होते हैं, वो अगर डिफॉल्ट करे बोरोवर, तो गुड्स को रीपर्चेस कर लेती है। जैसे एक बैंक ने कार फाइनेंस की, और कार फाइनेंस करने का 5 लाख रुपए की कार थी। कार फाइनेंस करने के बाद वो बोरोवर ने ईएमआईस नहीं पे की, तो वो रीपोसेस कर लेते हैं। रीपोसेस करके सेल करते हैं। तो अगर उन्होंने सेल की, तो वो कार 3 लाख रुपए की सेल की, तो 3 लाख रुपए सेलिंग प्राइस आ गया यहाँ पे किसी और पर्सन को। 3 लाख सेलिंग प्राइस तो आ गया इजीली।
अब क्वेश्चन आया परचेज प्राइस क्या लें, क्योंकि कार जो रिपोजेस की वो तो फिर उस पे तो कोई पेमेंट किया नहीं, तो फिर परचेज प्राइस क्या लें? तो बड़ा सिंपल सी बात है, जो ओरिजिनल बोरोवर ने कार परचेज की थी 5 लाख रुपए की, उसमें से माइनस कर दो 5% फॉर ईच क्वार्टर। जितने क्वार्टर्स हो गए हैं, उतने क्वार्टर्स के लिए, हर क्वार्टर के लिए 5%। जैसे 4 क्वार्टर हो गए हैं, तो 5 इंटू 4 20% माइनस कर दो। तो 5 लाख की कार थी, उसमें से 20% माइनस कर दिया, 1 लाख रुपए, तो परचेज प्राइस आ जाएगा, फिर वैल्यूएशन ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ जो क्वार्टर्स हैं, वो कौन से क्वार्टर होते हैं? वो क्वार्टर होते हैं जैसे जनवरी से मार्च 1 क्वार्टर हो गया, अप्रैल से जून दूसरा क्वार्टर हो गया, जुलाई से सितंबर तीसरा क्वार्टर हो गया, अक्टूबर से दिसंबर चौथा क्वार्टर हो गया। तो क्वार्टर ऐसे कैलकुलेट करते हैं। फिर 19 एमसीक्यू आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर जीएसटी। तो क्या क्या इंक्लूड करते हैं जीएसटी में? पहले भी हम देख चुके हैं। प्राइस ऑफ गुड्स होता है, पैकिंग चार्जेस होंगे, यस। टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी ने टैक्स लेवी किया, तो वो होगा यस। तो ऑल ऑफ द अबाउट डी करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं एमसीक्यू नंबर 20। What shall be the treatment of subsidies received from XYZ Private Limited by determining transaction value? तो XYZ Limited ने किसी ने नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी है, तो नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी की डिडक्शन मिलेगी या नहीं, वो क्वेश्चन आता है ना। तो देखते हैं, shall be included in transaction value even if not directly linked with supplier, यानी ट्रांजेक्शन वैल्यू में होगी, लिंक इवन इफ नॉट, नहीं, अगर लिंक नहीं है तो फिर नहीं होगी। shall be included only when such subsidy is directly linked with supply, yes, उसी ट्रांजेक्शन की वजह से सब्सिडी मिली, वही सब्सिडी जो होगी वो इंक्लूड होगी, और कोई नहीं होगी। तो ए और बी, सी ये भी नहीं, तो आंसर क्या लग रहा है हमें? बी करेक्ट आंसर लग रहा है। तो देख लेते हैं, यस। एमसीक्यू नंबर 21 और ये लास्ट एमसीक्यू है, वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी कंस्टिट्यूट टू इंक्लूड। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होता है? ए, ऑल टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, फीस एंड चार्जेस levied under GST देख लिया हमने, होता है। B, any amount that the supplier is liable to pay which has been incurred by the recipient, यानी थर्ड पार्टी पेमेंट, वो भी होता है। C, all the incidental expenses, subsidies to supply and other interest, late fees and penalty, ये भी होता है। तो फिर ऑल ऑफ द अबव, तो कौन सा आंसर ठीक लग रहा है? डी ठीक आंसर लग रहा है। देख लेते हैं, यस, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, so this is the end of this video. If you like this video, then press like button on YouTube। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो क्वेरी से रिलेटेड कमेंट कर सकते हैं, अपने सजेशन फीडबैक भी दे सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो भी कमेंट्स आएँ उनका आंसर टाइमली करें। और अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे न्यू वीडियोस के वो आपको मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा जो भी नेक्स्ट आएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।